ओके, am I audible? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताओ। चलो वेरी गुड। जिस किसी को भी प्रॉब्लम है मीटिंग क्विट करके फिर से ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है ना। चलो, तो अभी कॉम्बिनेशन स्टार्ट नहीं किए थे हमने, ठीक है। उससे पहले थोड़ा एक डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस बचे हैं कुछ, और रिपीटेशन वाले हमने शायद तक कर लिए थे, ठीक है। तो एक दो रिपीटेशन वाले और ले लेता हूँ। लेट्स से I take number of permutations of the word Russia. How many permutations of this word can be made? You can do the proper solution also, no problem. Yes. Very good. Many of you got it. Those who didn't got it, they have not revised. Yes, 360 is the correct answer. Okay. Because s repeats 2 times, so factorial 6 divided by, this is 2 times, so factorial 2, 720 by 2, which comes out at what? 360. चलो फाइन। अभी नेक्स्ट है, सपोज करो अपने को कोई भी रैंडम वर्ड दे दिया और पूछा, सपोज करो, जैसे ये ध्यान से समझना, मैं ये बता रहा हूँ आपको रैंक ऑफ द वर्ड ना, ये नया कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट सेम ही है, बस यूज कैसे करना है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। सपोज करो, हाँ कॉम्बिनेशन थोड़ा इसके बाद ना, एक दो टॉपिक और बचे हैं परम्यूटेशन में, उसके बाद फिर मैं कॉम्बिनेशन लेता हूँ। सपोज करो आपको पूछा है, लेटर है लेट, कितने लेटर्स है इसमें, कितने वर्ड, ये वर्ड है इसमें 4 लेटर्स है, ठीक है। अच्छा, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे टोटल? 24। फाइन, चलो एवरीवन हियर फॉलोज के 24 कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनेंगे, सॉरी। अब ये बताओ मेरे को, आई हैव जॉइंड ऑल इन ऑल 24 परम्यूटेशंस को मैं एक डिक्शनरी में अरेंज करूंगा, है ना। I'll arrange them in an alphabetical order in a dictionary. Then what will be the rank of the word late? तो लेट जो है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे आएगा कि सेकंड पोजीशन पे आएगा कि थर्ड पे आएगा कि 12 पे आएगा कि 13th पे आएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं सॉल्व करके बताऊंगा ना। बस आप क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में यदि किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड कि सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया मेरे को। इफ एनीबॉडी हैव डाउट इन द क्वेश्चन, रेज योर हैंड।
Yes. बोलो निपुण. Anyone having doubt in the question itself? Tell me. Rupesh. Sir, can you please repeat what was the main question? Main question is, there is a word called late. कितने letter है इसके? LATE. Fine. How many permutations of this can be made? 4 factorial. तो 24. अभी Yes, उन sir. सभी 24 को मैंने एक डिक्शनरी में अरेंज किया. Okay, sir. है ना? तो Yes. टोटल कितने आएंगे? 24. तो जो लेट वर्ड है, लेट, उसकी रैंक क्या होगी? वो पहली पोजीशन पे आएगा डिक्शनरी में, कि सेकंड पोजीशन पे आएगा, कि थर्ड पोजीशन पे आएगा? दिस इज द क्वेश्चन. Okay, sir. Thanks. यस इरा. Sir, what is the meaning of dictionary? डिक्शनरी बेटा, डिक्शनरी नहीं देखे आपने? Don't you know the dictionary thesis which contains the meaning of all words? हाँ Haven't sir. you heard? So तो alphabetical How order में आपने रखा? have you not? आपने आज तक डिक्शनरी यूज नहीं करी है क्या? You haven't used the dictionary in your life Yes, yet? yes. So how do you find words in dictionary? Alphabetical order में. हाँ, so वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने 24 permutations को सबको. ठीक है. Yes. नहीं सर, I just wanted to give the answer सर, मुझे आ गया था. सर. हाँ. सर एक बार वापस रिपीट करो ना मेन क्वेश्चन. क्वेश्चन है, you made all the permutations of the word late. There is a word called late, LATE. हाँ Fine. सर. You arrange them in a dictionary. Yes sir. Now what is the position of the word late in that dictionary? Okay. Okay sir. Okay, let me see how many of you got it. Many of you got it. Nipun correct. Krisha wrong hai. Shruti Dange correct. Jhalak Kala correct. Shivesh Mishra correct. Ridija correct. Aditya Gayan correct. Ananya correct. Krisha wrong hai. Pranav Patil correct. Nidhi Lohan correct. Sir, is the answer 15? No. Many of you got it. Very good. Vidit Thakkar correct. Amay Rajesh Pai correct. Harsh Modi correct. Many of you are getting it. Very good. Oh. Very good. I don't. All of you are aware of this concept. Very good. Those who got it, very good. Those who didn't, I'll explain it. You know that how to do it. देखो अभी. Fine. जिनको आ गया है, very good. जिनको नहीं आया है, majority of you got it. Almost 60 to 70% of the students solved this problem. जिनको नहीं आया है, please focus here. फिर उसके बाद focus करना. Okay. First I'll arrange all these. Let's say A, in dictionary order. A, then will come what? E. Fine. Then will come L, then will come T. This is the first step. अभी क्या करूंगा? I'll fix the first letter and keep these 3 letters variable.
I'll fix the first letter and keep these 3 letters variable. That is called conditional permutations. तो डिक्शनरी में सबसे पहला लेटर क्या आएगा? A. So अभी how many letters, how many words will I have which begins with A? So these can be permuted in factorial 3 ways. Fine, 3 places are there, so this is 6. Similarly, with E also, I'll fix the E. 1, 2, 3, factorial 3 again, 6. Now L. अभी मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि इसी में मेरा आंसर है, क्योंकि लेट जो है वो L से ही आता है, तो मैं इसको फैक्टोरियल 3 नहीं करूंगा अभी. Now what I'll do? नेक्स्ट L के बाद, है ना, L यहाँ पे आ गया, L के इसमें क्या आएगा? A आएगा, तो यहाँ पे A आ गया, है ना. अभी हमारा आंसर, ठीक है, TE है, तो इससे पहले क्या आएगा? ET आएगा, और इसके बाद में क्या आएगा? TE आएगा. करेक्ट. जो LA से इन दोनों को फिक्स कर दिया मैंने, एक ET बनेगा और TE बनेगा. तो कितने हो गए? ये कितना हो गया? हाँ, क्या डाउट है? LA ठीक है, तो ये कितने हो गए? दिस इज 1, ये टोटल, तो ये 6 + 6 + 6 दैट इज 1 प्लस इज इक्वल टू टोटल, मतलब देयर आर 13 ऐसे परम्यूटेशन है जो लेट से पहले आएंगे. तो लेट की रैंक क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द रैंक ऑफ लेट? इट्स 14. ठीक है. अभी इसमें किसी को डाउट है तो पूछो. जो डाउट पूछ रहा है, मेक श्योर दैट यू हैव अटेंडेड ऑल माय प्रीवियस लेक्चर्स. हाँ, बोलो दिया दोषी. No, sir, sorry, I forgot to lower my hand. Kindly lower your hand if your doubts are cleared. सारे बच्चे अपने हाथ नीचे कर दो जिनके डाउट्स क्लियर हो गए. ओनली सिर्फ वही बच्चे अपने हैंड रेस करो जिनको डाउट है. हाँ, बोलो स्वप्निल. सर मुझे ये लास्ट स्टेप नहीं समझा. कौन सा वाला? ये LA वाला? ये हाँ. तो ध्यान से देखो, ये लेट जो है, मैंने यहाँ तक फैक्टोरियल 3 लिया, इट्स फाइन. बट मेरे को पता है मेरा वर्ड हाँ. लेट जो है वो इसमें आने वाला है, तो मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 3 नहीं लूंगा. ये समझ में आया? समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि लेट मेरा इसमें L से शुरू होता है ना, तो वो 100% जो ये 6 में से कोई एक नंबर है वो, तो मैं वो नहीं लूंगा. What I'll do now, I'll fill the next place so that I can zero down to the late कि लेट एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है. तो मैंने L यहाँ पे फिक्स हो गया. अभी नेक्स्ट लेटर फिर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी भरेगा, क्या आएगा? A आएगा, तो मैंने यहाँ पे A रख दिया. हाँ. इतना समझ में आया? ठीक हाँ. है. अभी LA से कितने बनेंगे? LA से स्टार्ट होने 2 वाले लेटर्स बनेंगे. एक ET बनेगा और दूसरा TE बनेगा. TE हमारा आंसर है. हाँ. तो ET बन अगर गया. ये ET 5 इयर्स वर्ड लेटर होता तो, कौन सा वाला? अभी आ रहा हूँ, डोंट वरी. 5-6 लेटर का वर्ड होता तो. अच्छा, और अच्छा. देखता हूँ, अभी और लेंगे आंसर बेटा, डोंट वरी, है ना. और एग्जांपल लेंगे. ये इतना समझ में आया क्या कि यदि वो उस कॉम्बिनेशन में, यदि उस परम्यूटेशन में वो आ रहा है तो वो लेते नहीं है ना, उससे एक लेटर और बढ़ा देते हैं हम. वी इंक्रीज 1 मोर लेटर. ठीक है. ओके सर. ओके. यस शान. सर मुझे ये डाउट है कि सर ईटी का और टीई को आपने 1 कैसे लिया? किसको 1 कैसे लिया? सर ईटी टीई को. हाँ, ये कितना वर्ड है? टोटल कितना वर्ड है? सर 2. ये टोटल सिर्फ LAET. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर. LAET, हाउ मेनी वर्ड इट है? कितने वर्ड है टोटल? एक ही वर्ड है ना LAET. हाँ सर. तो ये 6 वर्ड, ये 6 वर्ड प्लस 1 कितने हो गए? 13. 13. नेक्स्ट क्या आएगा?
LATE 14. तो फिर वही तो आंसर है. ओके सर, मिल गया सर, थैंक यू। Yes, Anmol. Sir, so I only have one doubt. You took 1 over here, and I understood why you took, but can we take 2 factorial over here? So we directly get 14. If you do 2 factorial directly over there, then how will you come to know that you have suffered which 2 factors, E and T? Yes, sir. So how will you come to know that T is coming at which position? Oh, okay, sir. Got it, sir. Thank you. Yes, Adarsh. Sir, as I got disconnected, can you repeat the question explanation? See, beta, I have told you so many times now. I can't repeat because the lecture is already going so slow. You're supposed to watch the recording. Don't worry, I'll take more example. One more example. Okay, sir. Yes, Udish. Sir, I just had to ask if there is one formula for this, so that if there are 10 letter words, so we can apply that formula to get it. No, as per there is no particular formula. You have to find all the letters, all the combination permutations which are coming before your letter, before your word. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, is this in a combination? No, this is permutation. No, there's some part of the permutation which is remain. I'm covering that. चलो अभी next है. Many of you do it. Let me give you another example. Take another example. Let's say mother. M-O-T-H-E-R. Find the rank of the mother. Question same है. I don't need to explain it again. M-O-T-H-E-R. है ना. इसके अपने कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6. टोटल 720 इसके 720 परम्यूटेशन बनेंगे. उन सबको आप डिक्शनरी में अरेंज करोगे. Then what will be the rank of the letter mother? What will be the rank of the word mother? All the permutations of the word mother are arranged in a dictionary. What will be the rank of the word mother? This is the question. If you want, you can write. नो आदित्य. देखो कोई केस में मिस हुआ है क्या? यस श्रेया, करेक्ट. चलो करेक्ट. कार्तिक करेक्ट. रिद्धि करेक्ट. आर्या करेक्ट. एंजल नमन करेक्ट. नन्या करेक्ट. अमेय यादव करेक्ट. रशल गांधी करेक्ट. रशल नहीं, रॉन्ग है. 390 नहीं आएगा बेटा. प्रिशा देसाई करेक्ट. चलो वेरी ऑफ मैनी ऑफ यू वोटिंग. सब लोग एक दूसरे कॉपी करके तो नहीं लिख रहे हो ना? आई होप. सभी को चैट दिखती है क्या? कैन ऑल ऑफ यू सी ईच अदर चैट? आई हैव होस्ट ओनली करा है क्या? लेट मी मेक इट टू होस्ट ओनली.
Okay, let me do it to host only. अभी कोई आंसर कॉपी नहीं कर पाएगा. चलो ओके, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. बहुत से बच्चों को आया है, इनको नहीं आया है. प्लीज फोकस हियर. I'll disable the chat. क्लास में ऐसे बात करते रहते हो ना, ऐसे ही तुम लोग ये चैट पे बात करते रहते हो आपस में. क्लास में तो दिख जाता है मेरे को, यहाँ तो दिख नहीं रहा. पक्का आपस में बात करते होगे. चलो देखो, अरेंज करो इनको. सबसे पहले क्या आएगा? ई. ठीक है, उसके बाद एच, देन एलिमेंट ओ. ठीक है, मैंने इनको एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिख लिया ना, एबीसीडी. अभी मैं फर्स्ट लेक्चर फिक्स करूंगा. ई, ध्यान रखना हमको एम तक जाना है. तो ये कितना आएगा? इट वुड बी 5 प्लेसेस, सो फैक्टोरियल 5, 120. फिर नेक्स्ट क्या आएगा? एच, अगेन फैक्टोरियल 5, 120. तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा. अभी एम में हमारा लेटर मदर है, तो हम इसको सीधा फैक्टोरियल 5 नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हमने फैक्टोरियल 5 किया तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा रैंक है. इतना समझ में आया? दैट वी वांट डू इन द थर्ड फैक्टोरियल 5. अभी क्या करेंगे? वी विल फिक्स द नेक्स्ट लेटर. नेक्स्ट लेटर क्या आएगा? ई. ई फिक्स कर दिया मैंने. अभी इन चार को आप इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू फैक्टोरियल 4, सो 24. फाइन. फिर एम, ई हो गया. अभी एच आएगा. फिर फैक्टोरियल 4, सो 24. अभी एम, एच हो गया ना, ई हो गया, एच हो गया. अभी क्या आएगा? एम तो ले नहीं सकते दोबारा, ओ आएगा. तो अभी मैं फिर से फैक्टोरियल 4 नहीं करूंगा. क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मदर वर्ड हमारा एमओ में आता है. इतना समझ में आता है ना, कि फैक्टोरियल 4 नहीं करूंगा. मैं नेक्स्ट लेटर ले लूंगा. नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा? नेक्स्ट लेटर वुड बी ई, सो एमओई. इतना क्लियर हुआ? अभी एमओई में है ना, अभी कितने प्लेसेस बचेंगे? 1 2 3. ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, तो 6. फॉलोड. नेक्स्ट, कीप डूइंग लाइक दिस ना. मैं ऊपर लिख रहा हूं. अभी एम ओ ई हो गया हमारा, है ना. ई के बाद क्या आएगा? एच. एच 1 2 3 फैक्टोरियल 3 अगेन 6, है ना. अभी ई हो गया, एच हो गया, एम तो ऑलरेडी है ही, ओ भी, ओ तो हो ही गया है. आर, आर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एम ओ आर हमारा एम ओ टी है, इसलिए आर ले सकते हैं. फिर फैक्टोरियल 3, फिर 6. ठीक है. फिर अगेन एम ओ. अभी मैं टी के बाद फैक्टोरियल 3 ले लूं क्या? नहीं,
क्योंकि मदर में MOT है ना, तो आप फैक्टोरियल 3 नहीं लोगे, आप फिर से नेक्स्ट लेटर ले लोगे, क्या ले लोगे, यू विल टेक E। तो आप E ले लोगे तो कितने प्लेस बच जाएंगे, 2। तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पे 2 आ गया। अभी फिर से आप MOT E के बाद H ले लोगे क्या, H ले लोगे तो यहाँ पे फिर से फैक्टोरियल 2 करोगे क्या, नहीं, क्योंकि मदर में MOTH है। आप नेक्स्ट लेटर ले लोगे, है ना, नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, E, ठीक है ना, और बचा हुआ क्या, R। तो अभी इन सबको ऐड कर दो, 120 120 24 24, दिस इज 240, 240 प्लस 48 288, 288 प्लस 20। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या मैंने, 6 6 6 18 प्लस 2 20, 48 68, एक मिनट ना, हाँ 309। तो 308 आएगा सबका सम। सो द आंसर वुड बी 309, which many of you gave the answer। हाँ, रुक जाओ अभी, let me take the doubt one by one। गर्व, yeah, tell me गर्व। हाँ सर, तो मतलब आफ्टर वी ऐड एवरीथिंग वी हैव टू ऐड 1, या फिर और दी आर का जो लास्ट है उसको एक ब्लैंक करके 1 काउंट करना है। हाँ, आफ्टर, उससे पहले कितने वर्ड आ रहे हैं ये बताओ मेरे को। मदर से पहले, मदर को 1 काउंट नहीं करना बेटा, मदर से पहले कितने वर्ड आ रहे हैं। सपोज करो 300 वर्ड आए, तो मदर की रैंक क्या हो जाएगी, 309th। अच्छा, हाँ, समझे ना, इस तरीके से कि मदर से पहले कितने वर्ड आए उसमें फिर एक ऐड कर दो तो वो मदर की रैंक हो जाएगी। समझा 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 सर। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। यस रिधिजा। Could you explain this sum once again? I didn't understand after the first 2 steps. Like after you got 120, I didn't understand. हाँ तो देखो, I'll just explain, आपने को बताना कौन सा स्टेप में समझ में नहीं आया। Did you understood this factorial 5? Yes. This factorial 5? Yes. This factorial 4? No. See na, you have counted the word starting with E, you have counted the word starting with H. Now you are interested in word counting with M. Yes, sir. But if you take factorial 5 here, and in those factorial 5, mother would be there. Yes, because sir. the word starting from M, na, the mother letter, the mother word would be there if you're counting all the word. But how will you come to know the whether what is the rank? So if you take the factorial 5, so how do you do it to solve, go further? You write down the next letter in the dictionary. You fixed M. Now you try to fix this next letter. So out of these all 6 letters, which comes first in the dictionary? E. Yes, So I sir. put E over here. Now tell me, will the rank of ME and MO, ME come before than MO? Yes, sir. So I can take these factorial 4 because in these factorial 4 word, mother will not be there. I'm 100% sure. Correct. Correct. So I took factorial 4. Similarly, when I consumed E, I took MH. Mother will not be there in the word starting with MH. Yes, sir. Fine. So factorial 4. Now I took MO. Now here mother would be there. So I cannot take factorial 4 right now. I have to move further. So I stop, go to the next step. That is again choose the first letter. That is E. Will mother will be there in the letters beginning with the MOE? No. So again factorial 3. Rest 3 can be arranged in factorial 3. Similarly, these can be arranged in factorial 3. Factorial 3. Here mother would be there. So I moved on to the next letter. So you go on till date, है ना? You करते जाइए जब तक कि आपको. But sir, the last one you did not take any factorial. This one. Yes, sir. Because we got the word. What is the word? Mother. This is the word, है ना? So you count all the words coming before it. So all the words sums up to what? 308. So the answer is 309. Okay, sir. Thank you. Yes. बोलो.
आरन आरन सेन गुप्ता. Yes, Arpit. Sir, Hmm. I didn't understood how did you get the answer as 309? इनका सबका सम 308 नहीं आ रहा क्या? 308 आ रहा है सर, फिर 309 आंसर कैसे हो गया? इस लेटर से पहले कितने वर्ड्स आए? 308. तो इसकी रैंक क्या होगी? 309. हाँ सर. Yes, Rohan. Sir, can you please explain again from the 4 factorial one? हाँ बोलो, कहाँ से ये फैक्टोरियल 4 तक समझ में आया? हाँ सर. तो अभी देखो मेरे को नेक्स्ट मैंने क्या लिया, MO. तो ये बताओ मेरे को, MO से मदर बन सकता है क्या? नहीं सर. अरे MO से मदर बनेगा नहीं बनेगा? MOTHER आगे बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हाँ सर. तो आप इनको परम्यूट करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी मदर वर्ड जो है वो फैक्टोरियल 4 में कौन सा वर्ड है? समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे क्यों फैक्टोरियल 4 नहीं लिया? क्योंकि मदर इसमें आने वाला है. इस वाले फैक्टोरियल 4 मैंने यदि ले लिया ना, फैक्टोरियल 4, इन वाले फैक्टोरियल 4 24 वर्ड्स में से मदर एक वर्ड है. मेरे को क्या पता कौन सा है वो? अच्छा, हाँ तो फिर वो पहले आ जाता. हाँ सर, अंडरस्टैंड हो गया. Yes, Ananya. Sir, what if the question asks that find all the words after mother in the dictionary? हाँ तो टोटल कितने हैं? So total is 6 factorial. 720. Yes, ठीक sir. है. इंक्लूडिंग मदर कितने वर्ड होगा? 309. तो 720 में 30 माइनस 9 माइनस कर दो. ये क्या क्वेश्चन है? No, sir, but what if they ask like only like suppose some new word is given and then they ask for all the words after it. Suppose they give like a word horse for example, and then they ask for all the words after horse in the dictionary. All the words after horse. दो वर्ड्स का मिक्स करके नहीं देते बेटा, एक ही वर्ड देंगे आपको और उसी में से उसकी रैंक पूछेंगे. दे वांट गव कि एक बार हॉर्स दे दिया और एक बार मदर दे दिया और दोनों का रैंक ऐसा पूछ लिया. नहीं नहीं ऐसा नहीं. No sir, suppose we get only horse. हाँ. And then we are asked to get the words after horse in the dictionary. Get the words. Number. So we are supposed to find a number of words after horse in the dictionary. हाँ तो इस केस में यही तो बोला आपको. क्या हो गया आपको? 720 पता है. 720 टोटल लेटर्स हैं. मदर तक आपके कितने लेटर्स आ गए? 309. तो 309 माइनस कर दो ना 720 में से. इसमें क्या आपको लॉजिक है ज्यादा? Subtract 309 from 720. So we have to find the entire word before it to get the words after it. Yes. So the रैंक तो पता करनी पड़ेगी ना आपको. Yes sir. हाँ. Thank you sir. Yes, स्वप्निल. सर जो MOTE फिर 2 फैक्टोरियल हुआ, तो सर फिर MOTH का पहला लेटर MOTH उसके बाद वाला स्टेप नहीं समझा. यहाँ तक समझ में आया? ये यहाँ तक? हाँ ये पूरा समझा, सिर्फ लास्ट वाला नहीं समझा. हाँ तो लास्ट वाला देखो. अभी MOTE के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? H. हाँ. अभी H आ गया. अभी मैं MOTH यहाँ पे फैक्टोरियल 2 ले सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, क्योंकि MOTH से मदर बनता है. तो ठीक है, नेक्स्ट लेटर ले लो. अभी नेक्स्ट लेटर पर क्या लूंगा? E. है ना. फिर उससे नेक्स्ट क्या ले लूंगा? R. आ गया, मदर ही मिल गया. अच्छा, अगर मिल गया तो हम लोग को स्टॉप कर देना होगा सर. स्टॉप हो जाना है. नहीं मिलता तो फिर करते रहते. यस जयराग.
हाँ सर, आपने जो MOH लिया है तो MOH के बाद आप MOO भी लेना चाहिए ना आपको? नहीं बेटा, एक लेटर है, एक ही वर्ड है, यूज कर सकते हो आप, मल्टीपल टाइम नहीं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। लेकिन सर आपने जैसे ME4 फैक्टोरियल किया तो ME4 फैक्टोरियल में MEE भी एक तो आएगा ना? ME में आपने ME और कंज्यूम कर लिया, कितने वर्ड्स बचे? टोटल 4 लेटर बचे ना। 4 को कितने तरीके से परम्यूट करोगे? फैक्टोरियल 4। हाँ, लेकिन वो फैक्टोरियल 4 में MEE कुछ वर्ड भी होगा ना, तो ऐसे कैसे होगा MOH में। बेटा? एक चीज बता मेरे को, मैंने ME और यहाँ कंज्यूम कर लिया, अभी HORT को जब मैं परम्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे E कैसे आ जाएगा बता मेरे को? अच्छा, ओके ओके। HORT में E है क्या? Is there E among नो HORT? नो नो, हाँ So how ठीक है। can you say that E आ जाएगा? हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है, तो ये डिक्शनरी वाले मेजॉरिटी आपको आते हैं, जिसको नहीं आते थे मैंने कर दिया। तो अभी नेक्स्ट आई टेक विद दी परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस मैंने स्टार्ट कर दिया था क्या, बताओ जरा? अब आई स्टार्टेड द परम्यूटेशंस, ए कॉम्बिनेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिया था मैंने? नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया था, फॉर्मूला ड्राइव भी नहीं किया था, नथिंग। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। So I'll start with the combination. Combination ना, कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब होता है सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन, दैट्स इट ना। द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन इज ओनली सिलेक्शन। नो अभी बहुत है, देयर इज अ लॉट ऑफ इनटू इट ना, सर्कुलर परम्यूटेशंस हैं, बहुत सारी चीजें बची हैं बेटा। दिस चैप्टर इज क्वाइट लॉन्ग, ये चैप्टर अच्छे से कर लो तो आपका आरएमओ का भी बहुत सारा पार्ट कवर हो जाएगा ना। a lot of simultaneously chapters are going on. कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? ओनली सिलेक्शन। हमें सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है, हमको उसके अरेंजमेंट से मतलब नहीं है। वी डोंट केयर अबाउट अरेंजमेंट, वी ओनली केयर अबाउट सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये देखो जरा, A B C, there are 3 persons, fine. I want to make a team of 2. So in how many ways can I select? I am only interested in select. So if I select AB or I select BA, will it make a difference? No, both are same. Order doesn't matter. Fine now? Similarly, if I take BC, if I take CB, these both are same. They are composed of the same person. They comprised of the same person. Similarly, ACCA. So how many ways are there? Total 3. If I take this into account, it becomes an arrangement. If I don't take this into account, the order, it becomes a combination, that is selection. Fine. If anyone is having doubt in this definition, that's combination means only selection. Yes. Yes. Sir, can you repeat that? What exactly is the difference? The difference is that in arrangement, you take care of the order also. Fine. For example, let's say I have 3 person A, B, C. Okay. I want to make a team of 2 persons. In how many ways can I do it? Fine. So if I select, let's say A first and then B second, or I select B first, A second, the team in any way is going to be comprised of 2 person only, A and B. Will it matter whether I chose first A or B second, or B first or A second?
No. Fine. So when it matters, that is called an arrangement. When it doesn't matter, then it is called as combination. So in permutation, does it matter? Yes, in permutation it matters. Right now, because AB and BA are two different permutations. Here A is coming first, B is coming second. Here B is coming first, A is coming second. So sir, if you have to like in permutation, if you have to arrange a word like eat, so here EAT and EAT and TAE will be considered as separate cases or same cases? They will be considered as separate cases in the case of permutations. Correct, but in the case of combination, they would be considered the same. Okay, so in combination, we consider them as same cases. Same cases, because they comprise, it's only interested in कि team किससे मिलके बनी है. It doesn't care कि order क्या है. Okay, sir. Okay, sir. Yes, Akshan. So exactly मतलब सिलेक्शन के मीनिंग में मतलब कॉम्बिनेशन के मीनिंग में मतलब इन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में इतना डिफरेंस है कि सिलेक्शन वाइज देखा तो ए बी और बी ए इज द सेम और परम्यूटेशन के वाइज देखा तो ए बी एंड बी ए इज डिफरेंट, राइट? ऐसा ही कुछ तो है ना? Yes, yes, yes. You'll come more अभी और definition clear होगी, don't worry. Okay. चलो. Yes, Srinjay. Srinjay बोलो. ठीक है, तो अभी हाँ. तो फॉर्मूला में ये नीचे नीचे भी फॉर एग्जाम्पल पी. सर द डाउट इज क्लियर. Now what I'll do, I'll make the general formula. ध्यान से देखना अभी. फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम. सॉरी. अच्छा, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? What is the meaning of permutation? Yes, Harav. और परम्यूटेशन मतलब कि वो सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों. दोनों. Very good. है ना? Permutation means selection and arrangement both. Very good. Many of you raise the hand. Very good. So permutation means you selection and arrangement. ध्यान रखना, मैंने and बोला है. ठीक है, अभी मैं कॉम्बिनेशन का थोड़ा फॉर्मूला लिखता हूं. NCR है ना? NCR का मीनिंग लिख लो बेटा आप. The meaning of NCR, क्या मतलब होता है? The number of ways of selecting R objects. सिर्फ सिलेक्शन रहा है, ध्यान रखना. R objects out of an distinct objects. NCR की डेफिनेशन लिख लेना. ठीक है,
What is the definition? The definition is the number of ways. I'll repeat it. The meaning of NCR is the number of ways of selecting R objects out of n distinct objects. Yes, Sarveil. So I want to say that NCR stands for me. NCR means the number of ways of selecting No, sir, R like that. object. N factorial upon. We will drive that formula. Okay, We sir. will drive that formula. How will it come? Okay, sir. Yes, Akshan. So you said that in permutation it is combination as well as selection. It's permutation, it is selection as well as arrangement, right? Like arranging things and well as selecting them. But, Yes. Yeah, but can you give an example of selection and permutation like we did? First let me drive the formula. बिकॉज मुझे ये नहीं समझा कि परम्यूटेशन में सिलेक्शन कहाँ से किया हमने. परम्यूटेशन में सिलेक्शन, परम्यूटेशन हमने इतने एग्जांपल दिए. व्हाट इज एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? NPR number of way arranging object r places. तो क्या आ जाता है एनपीआर का फॉर्मूला? n factorial by upon n minus r factorial. चलो, वेरी गुड. ठीक ना. तो अभी आपने जो पूछा ना, बिल्कुल आपका जेन्युइन क्वेश्चन है कि सर आपने तो सीधा फॉर्मूला ड्राइव किया है और आपने उसमें कभी बताया ही नहीं. तो अभी ध्यान रखना, ये हम डिफाइन कर रहे हैं. What is the definition? NPR is the selection formula, right? No, NPR is selection and arrangement. Okay. है ना, definition ही है. What is the definition of permutation? Selection and arrangement. Selection and arrangement. ठीक ना. तो आपने अभी सही पकड़ा कि सर उसमें हमने अब अरेंजमेंट करते ही देखा है, सिलेक्शन करते तो देखा नहीं. अभी देखते हैं ना, जस्ट फॉर वेट. ओके, ठीक है. हाँ, चलो है ना. ये सबने लिख लिया. किसको क्या डाउट है? एनीवन एल्स? चलो तो अभी किसको डाउट है? स्वप्निल. सर तो हम लोग परम्यूटेशन में बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ जगह है, हम लोग को आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो उधर ए बी और बी ए दोनों को अलग केस कंसीडरेशन में लिया जाएगा और इधर हम लोग को एक केस कंसीडर करना है. करेक्ट. चलो तो अभी ये सबने लिख लिया, तो अभी ध्यान से देखना. NCR ये क्या है? सिर्फ सिलेक्शन, जो डेफिनेशन लिखी है अभी हमने. ठीक है. कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे हमने? R. अच्छा एक बताओ मेरे को, R ऑब्जेक्ट हैं, सारे डिस्टिंक्ट हैं. हमने पहले बोल दिया डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं. मेरे को अरेंज करना है एक लाइन में, कितने तरीके से कर सकता हूं? यस, R फैक्टोरियल है ना. जैसे अब भी आपने देखे थे कितने वर्ड्स बनाए थे, आप लोग सब आंसर दे रहे थे डिक्शनरी में. यू कैन अरेंज R वर्ड्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन फैक्टोरियल R. करेक्ट. इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? किसी को इसमें डाउट है तो बोलो. एनीवन हैविंग डाउट कि हाँ R ऑब्जेक्ट को हम एक लीनियर लाइन में R तरीके से. अभी ध्यान से देखना. किसको डाउट है? लेट मी सी. एरा
What doubt you have? सर डाउट ये है कि सर जब अरेंज करते हैं मार्क को तो आर फैक्टोरियल कैसे बनता है? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। सर सारे नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन टिल आर। टिल आर, वेरी गुड। तो ध्यान से देखना, ये आर प्लेसेस है मेरे पास। हाँ। इस प्लेसेस पे कितने पर्सन बैठ सकते हैं? नेचुरल नंबर्स। बेटा हमारे पास आर पर्सन है और आर प्लेसेस हैं। हाँ, तो आर लोग एक पे एक। इस पे आर, हाँ, इस पे आर। अरे बेटा एक बंदा तो ऑलरेडी बैठ गया है ना यहाँ पे। अच्छा, तो दूसरा बंदा बैठेगा तो कितना बैठेगा, कितने तरीके से बैठ सकता है? जितने भी आर है। आपको वेरिएबल में कंफ्यूज हो गया। सपोज करो 5 हैं, 5 हाँ। हैं और 5 प्लेसेस हैं। तो इस एक प्लेस पर पे एक। नहीं बेटा, इस पे कितने बंदे बैठ सकते हैं? ये प्लेस कितने बड़ी एक पर तरीके एक से बैठ- भरी जा- एक पर एक वो बैठ ठीक है, सकता है। एक पे एक बैठेगा, परफेक्टली फाइन। एक पे दो नहीं बैठा रहा मैं। इस प्लेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? 5 बैठाकर भी 3। 5 में से कोई भी बैठ जाएगा। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, हाँ सर। है ना। तो सपोज करो आपके पास ए बी सी डी और ई थे। इन 5 में से आप कोई भी एक रैंडम ले लो। सपोज करो आपने एक रैंडम ले लिया डी, तो डी यहाँ पे बैठ गया। अभी इस प्लेस पे कितने लोग बैठ सकते हैं? एक से ज्यादा मतलब। हाँ एक ठीक है, पर इन हाउ मेनी कौन हो सकता है? वो एक कौन हो सकता है? ई क्या? बी भी, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो कितने तरीके हो सकते हैं? 4। हाँ। सिमिलरली इसके कितने होंगे? 3। 3। इसके कितने होंगे? 2। इसके 1। अब सबको मल्टीप्लाई करना है कि ऐड? मल्टीप्लाई की ईच पे लेके जा रहे हैं हम। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये फैक्टोरियल ऑफ 5। 5। अब सपोज करो आर है और यहाँ पे भी आर है, तो क्या बन जाएगा? हाँ, तो फैक्टोरियल ऑफ आर। तो वही तो बोला। ठीक है सर। यस अक्षन। सर वो ठीक है कि इफ यू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेसेस आर फैक्टोरियल, पर फॉर एग्जांपल इफ हम बोले कि यू अरेंज 4 ऑब्जेक्ट्स एट 3 प्लेसेस। हाँ आ रहे हैं ना, वही तो तुम जो बोल रहे हो ना, वो आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। डोंट वरी, वो पूरा तेरा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार मेरे को एक्सप्लेन करने दे, फिर तू फिर से क्वेश्चन पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ यस स्वप्निल। सर तो इधर आर ऑब्जेक्ट्स को आर मतलब आर प्लेसेस में अरेंज करने में एन को कंसीडरेशन में नहीं लेना इस केस में। एन को, वो तो एन तो आउट ऑफ पिक्चर हो गया ना बेटा। एक बार मैंने आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, मेरे पास 5 थे, 5 में से मैंने 3 सिलेक्ट कर लिए ना। 3 सिलेक्ट, ए बी सी डी ए, तो कोई भी 3 सिलेक्ट कर लिए। अब मेरे को नहीं पता वो कितने तरीके से कर सकते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया ले 5c3 तरीके से कर सकते हैं। 5c3 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी मेरे को ना पता, है ना। आई जस्ट अज्यूम द कांस्टेंट। लेट्स अज्यूम एट 5c3। यू कैन अज्यूम दिस अल्फा, यू कैन अज्यूम एट बीटा, का डजंट मैटर। ठीक है, एक बार सिलेक्शन होने के बाद नाउ आई नीड टू अरेंज दोस 3 ऑब्जेक्ट, लेट्स से ए बी सी, in 3 places. In how many ways you can do it? 3 factorial. 3 factorial। तो वही है, एक बार मैंने R select कर लिए, अभी मेरे को उनको R places पे अरेंज करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? ओके सर, अच्छा। चलो अभी ध्यान से देखना। यस और नो? क्या डिटरमाइन करता है? n आपके पास टोटल जितने ऑब्जेक्ट हैं। फॉर्मूला में हाँ फॉर्मूला में n नहीं आएगा क्या? जोर से बोले बेटा, आपका आवाज बहुत रिजोनेट हो रहा है। सर ये फॉर्मूला में n नहीं आएगा। फॉर्मूला अभी उन्हें ड्राइव कहाँ किया है?
चलो ध्यान से देखना। अभी लेट मी इरेज दिस पार्ट। इतना पार्ट समझ में आया कि NCR जो है वो सिलेक्शन दे दिया और फैक्टोरियल R जो है वो अरेंजमेंट दे दिया, है ना। अच्छा, स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट बोल रहा है कि आप सिलेक्शन करो एंड अरेंजमेंट करो। सिलेक्शन का आंसर हमको नहीं पता, हमने कोई वेरिएबल मान लिया। आप का मान सकते थे, आप अल्फा मान सकते थे, मैंने NCR मान लिया। NCR थोड़ा लॉजिकल लगता है क्योंकि आप बोल रहे हो कि n में से आप सेलेक्ट कर रहे हो, अल्फा या का मानने को तो समझ में नहीं आएगा ये अल्फा और का क्या होता है। एंड जो है, एंड में क्या लगता है जल्दी बताओ? इनटू इनटू इनटू, सबको पता है ना, जहां पे भी एंड देन आता है तो क्या लगता है? फंडामेंटल प्रिंसिपलिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अरेंजमेंट का आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल आर। इतना क्लियर? अच्छा, ये दोनों मिलके एज पर डेफिनेशन क्या दे देंगे? परम्यूटेशन। आपने आर ऑब्जेक्ट को क्या किए? आर ऑब्जेक्ट के परम्यूटेशन बनाए एन ऑब्जेक्ट में से। तो एज पर डेफिनेशन, है ना, एज पर डेफिनेशन क्या होगा? NCR इंटू फैक्टोरियल R शुड बी इक्वल्स टू NPR, क्योंकि आपने सिलेक्ट भी कर लिया और अरेंज भी कर लिया। दैट इज परम्यूटेशन। यही तो मैंने बोला था, परम्यूटेशन क्या होता है? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। नाउ यहां से NCR की वैल्यू कितनी आएगी? इट वुड बी NPR डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R। फाइन। और आप जब NPR की वैल्यू पुट कर दोगे, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ NPR, तो क्या हो जाएगा? इट वुड बी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r। ये मैंने किसकी वैल्यू डाल दी? NPR की, into factorial R. This is the formula for NCR. अभी इसमें किसी को डाउट है? Now start asking. Yes, Anhad. Sir, in the last you have written R factorial, right? Yes. Okay, sir. Thank you. Yes, Ritika. Sir, I did not understand that how you took NCR as the NPR. Like, aren't they different? What is the definition of permutation? Like selection and arrangement. Selection. Selection कितने तरीके से कर सकते हो? In what? In how many ways can you select R object out of N object? R factorial. No, how come R factorial? You don't know. नहीं पता हमको, कोई assume कर लो variable. Let assume some variable alpha beta. Okay. Fine, fine. You assume some variable x, y, z, whatever. Okay. Now, selection हो गया. हाँ, sir. Now you have the R object. Now tell me in how many ways you can arrange R object? R number of times. Like, how many arrangement or arrangement can you make? Let's say आपके पास दो लेटर हैं, A, B और B. A, B दो लेटर हैं आपके पास, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? 2. एक AB, एक BA, और मैं बोल दूं चलो C है, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? then 3 factorial. 3 फैक्टोरियल, और R है तो 6. है ना, R है R तो factorial. तो वही तो लिखा मैंने, R फैक्टोरियल। तो सिलेक्शन की जगह NCR एक वेरिएबल, एंड की जगह इनटू, अरेंज के लिए फैक्टोरियल R, सो फैक्टोरियल R. Okay, sir. This is equals to as per definition NPR. तो वही तो इक्वल किया मैंने. Okay, sir. Got it. Thank you. Yes, Rupesh Tripathi. Rupesh Tripathi, you raise your hand. त्याला त्याने जर का सांगितलं ना असं कसं
यस अक्षन। सर अगर आपने एनपीआर का फॉर्मूला लगा के यूज किया है तो हम और कोई भी फॉर्मूला से भी इक्वेट कर सकते हैं, लाइक पीएनआर से या कोई और अदर फॉर्मूला। पीएनआर से वो भी पीएनआर से मतलब समझा नहीं, एन फैक्टोरियल बाय आप एन माइनस डिफाइन आर, करो ना। नहीं समझा नहीं मैं, पीएनआर से कैसे यूज कर लोगे आप? क्योंकि उसका भी मीनिंग एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल है। हाँ तो वो तो सिंबल पे लड़ रहे हो आप, फिर ये बोल रहे हो कि सर नहीं मैं तो एनपीआर यूज नहीं करूंगा, मैं पीएनआर यूज करूं। सिंबल ऐसे पे क्यों पूछा था सर कि वो भी यूज कर सकते हैं ना, लाइक हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते, डजंट मैटर, सिंबल तो आप जो चाहो वो यूज कर लो। ओके सर। यस आदर्श। सर मेरा ये डाउट था कि हमेशा एन आर से बड़ा रहेगा। एन आर से बड़ा रहेगा, हाँ। ओके सर। हाँ ध्रुव। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अभी आपने बेसिकली एनसीआर का फॉर्मूला डिराइव किया क्या? बस दैट्स इट और नथिंग एल्स। ठीक है, थैंक यू। यस रोहन। सर हम लोग एनसीआर का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो हम एनपीआर क्यों यूज कर रहे हैं? बेटा आप कहाँ रहते हो, पूरी मूवी निकल जाती है, आप फिर लास्ट में जाके पूछते हो। परम्यूटेशन क्या होता है बताओ जरा। सर सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। हाँ ठीक है, सिलेक्शन क्या होता है? सर सिलेक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन। हाँ तो क्या होता है, उसको क्या अज्यूम किया हमने? एनसीआर। एनसीआर। परम्यूटेशन एनपीआर। हाँ तो डेफिनेशन में ही आ रहा है ना, तो फिर आपका क्वेश्चन ही absurd है जब डेफिनेशन में ही आ रहा है। ओके सर, थैंक यू। यस स्वप्निल। सर इसको डिराइव करने का और कोई मेथड नहीं है? इसको ड्राइव करने का और कोई मेथड, और कोई मेथड तो नहीं, मतलब वो तो मेरे को बेटा मैक्सिमम, मैंने जितनी भी मैथ्स की मैक्सिमम टेक्स्ट बुक देखी है उनमें यही मेथड दिया हुआ है उनने, बेसिक डेफिनेशन पे ही। यस रूपेश। सर ये फाइनल है, इसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता? क्या मॉडिफिकेशन, मतलब समझा नहीं मैं। सर मतलब ये फाइनल फॉर्मूला है? हाँ एनसीआर का यही फॉर्मूला है, एनसीआर इज फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इनटू फैक्टोरियल आर। थैंक्स। चलो तो अभी फटाफट कुछ वैल्यूज निकाल के मेरे को बता दो। फॉर्मूला सबने नोट कर लिया? आई होप नोट कर लेना, नहीं किया है तो आई एम गोइंग टू आस्क यू टू 5-6 क्वेश्चन देने वाला हूँ, यू हैव टू फाइंड द आंसर फॉर दिस। यस त्रिशा, डाउट है? एनीवन हैविंग डाउट? नहीं ना? Find the values of the following. You need to find the value of 5C2 second, find the value of 5C3 third, find the value of 4C0 fourth, find the value of 6C1। चलो इतना कर दो मेरे को फटाफट, जल्दी से आंसर पोस्ट करो। लेट मी enable the chatting section also. Yes Ridija. So what have you written third one? 4C? It's 4C0. 4C0. Okay, sir. Yeah. Thank you.
करेक्ट। 0 कहाँ से आ जाएगा श्रेया? करेक्ट प्रबुद्ध। आयुषी पांडे करेक्ट। प्रणव पाटिल करेक्ट। सत्यविक रॉन्ग। थर्ड वन रॉन्ग है बेटा आपका। फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। थर्ड झलक काला आपका रॉन्ग है, थर्ड वाला। नो श्रेया, फॉर्मूला लगाओ ना, इसमें क्या दिमाग है, मैकेनिकल है। फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालते जैसे डाल के, तो दिमाग ही नहीं लगाना उसमें, सीधा वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो और क्या। यस आर सर करेक्ट है। रोहन करेक्ट है। सरवील करेक्ट। लवलीना करेक्ट। ओजस्वी रॉन्ग है। अनमोल करेक्ट। अनारे करेक्ट। नहीं, अनहार आपका थर्ड रॉन्ग है। 6C1 ना फोर्थ क्वेश्चन सिद्धि। नमन कंसारा करेक्ट। नकुल करेक्ट। त्रिपाठी करेक्ट। चलो, many of you got it, very good, है ना। तो एक चीज बताओ मेरे को अभी, ठीक है, I'll mute the chat section, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। जिनको आंसर आ गया है मैच कर लेना। सिंप्लीफाइड फॉर्म में दो, हाँ, ऐसे फैक्टोरियल फॉर्म में लिख के मत दो। अरे 3 चलो अभी देखो, I'll solve the all। 5C2 फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर NCR is factorial n divided by n minus r factorial into factorial r। So 5C2 यहाँ पे n क्या है? What is n? n is 5 here, r is 2 here। Put the value in this formula। So factorial 5 divided by n minus r, that is 5 minus 2, that is factorial 3 into r, that is 2 factorial। Now factorial 5 and factorial 3 will be cancelled out. How? I'll write like this: 5 4 3 factorial into 3 factorial into 2 factorial 3 will cancel out, 2 1s are 2, 2 2s are 2, 5 into 2 is 10। So the answer for this one is 10। Fine। Similarly, for the second case, I'll apply the formula. In there, the n would be 5 and r would be 3. Fine। The n would be r and r would be 3. So apply the formula. It would be what? Factorial n, that is factorial 5, n minus r, that is 5 minus 3, that is factorial 2, into factorial r, that is factorial 3, which is just like the previous question, that is 10। पीछे भी ये आया था। अच्छा, इससे मैं एक क्या ये डिडक्शन निकाल सकता हूँ क्या? कैन आई मेक दिस डिडक्शन फ्रॉम दिस दैट द NPR, और ये नोट भी कर लेना आप, NCR is equals to NCN minus R। Can I make this based on these two? Correct? हाँ? अच्छा, कौन बताएगा मेरे को ये जो मैंने लिखा है NCR equals to NCN minus R, ये करेक्ट है क्या? Raise your hand if anybody want to explain। कैसे होएगा? Yes, बोलो। Sir, so NCR is n factorial upon r factorial into n minus r factorial,
And ठीक है NC n minus r would be n factorial upon n minus r factorial, which in the earlier formula was r factorial. And ठीक है n minus r would again be equal to r factorial. तो देखो वो बोल रही है कि सर आप ऐसा करो फॉर्मूले से कर लो। देखो फॉर्मूला लॉक कर देता हूँ मैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे n क्या है, n है। यहाँ पे r क्या है, r है। इतना क्लियर? फॉर्मूला लगाओ अभी, ध्यान से देखना। ये क्या जाएगा, इट वुड बी फैक्टोरियल n, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल इनटू इसका फैक्टोरियल r। अभी इसमें लगाओ फॉर्मूला, इसमें n है और यहाँ r की जगह ये है, याद रखना। तो ऊपर वाला एज इट रहेगा फैक्टोरियल n, नीचे वाला क्या होगा n माइनस r। तो यहाँ r की जगह क्या है, दिस है, तो ये क्या होगा n माइनस n प्लस r, है ना। इसमें ऐसा होगा ना ब्रैकेट में n माइनस r, माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये माइनस n प्लस r हो जाएगा, n से n कट जाएगा, ये सिर्फ r बचेगा। शुड वुड बी फैक्टोरियल r, फाइन, एंड n माइनस r की जगह n माइनस r, फाइन। सबको इसी तरीके से आया क्या? यस। अच्छा, ऐसा कोई है क्या जो मेरे को इसको कोई दूसरे मेथड से प्रूव करके बताए अदर देन फॉर्मूला? फॉर्मूला मेथड नहीं चाहिए मेरे को, आई डोंट वांट फॉर्मूला मेथड। If anyone else can prove it other than formula method, then raise your hand. Otherwise, lower your hand. If you can explain with the help of any other example, no formula, no numerical values, then raise your hand. Yes, others, you want to explain? I'll take the doubt later. First, I want the explanation. Anyone who can explain, then raise your hand. Who can? Ishan. Okay, explain. Sir, 5C to answer we got 10, no? Yes, sir. Yes, so, sir, we can do, sir, like 5 is n and r is 3. And then, Beta, that's putting the value of n and r. I'm not asking the value of n and r. I want to give in the word problem. Make a proper word statement, proper general real life problem. Formula method I don't want. Anyone else? Yes, Riti. Yes, Riddhi, you want to explain? Swaraj. Yes. Adarsh. Yes, sir. Sir, I am going to just tell that in the following problem, the value of the n is same, but the value of the r is changing in the second set. So it cannot be equal, and this statement is wrong. We have proved it to be right. We have proved it to be right by the formula method itself. How can you say that it is wrong? Formula method से prove करके दिखाए ना Sir, sir, but the r value is changing, no? What are you saying, बेटा? क्या बोल रहे हो आप? फॉर्मूला मेथड से प्रूव करके दिखाया आपको, देखो जरा, दिख नहीं रहा क्या? Yes, sir. तो फिर अभी उसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ? Okay, sir. Yes, Sarpit. Sir, so it can be done like that. If I have 5 players and I have to make team of 2 players,
and in the another case I have 5 players and I have to make team of 3 players, so I will get the same number of combinations. बट वो तो एक स्टेट मतलब ठीक है, आपने तो उसी को एग्जांपल लेके बता दिया, थोड़ा इनकम्प्लीट है। नहीं, हाँ ऋषा, लेट मी टेक अमे। हाँ 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 भाविन बोलो। सर हाँ सर एपी से हो सकता है। एपी से कैसे? सर लास्ट टर्म से कैसे बेटा, कैसे अप्लाई करोगे? नहीं ऋषा। Sir, I don't know how exactly to explain this, but if we see by logic, then when we choose R things out of N things, then the number of combinations for N minus R has to be same. हाँ, that's what I'm asking. You're saying that I want to the logic behind it, like that why they are coming same. That's why I'm asking. So by logic. By logic. वही ना, वही लॉजिक ही तो पूछ रहा हूँ। why by logic कैसा है? फार्मूले से आ रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली फाइन। आपने फार्मूले में डाला, दोनों आंसर्स फार्मूले से n माइनस आर कट गया, दोनों इक्वल आ गए, फाइन। तो वही मेरा लॉजिक है कि ऐसा क्यों हो रहा है, why this is happening, क्यों हो रहा है वैसा? That's what I'm asking. Yes, sir. Okay. Anyone else? Yes. I think that they will be the same because n is remaining constant and r also has the same value. And then that's why n minus r is... So if r is changing, so the n minus r will also change. But n is the same, right? N remains the same. N is the same. So if r changes, then n minus r will change. But so both are the same, right? So The that's why I'm asking. denominators are the same. Denominators are different, na? Then again you're arguing on the formula part. I'm not again arguing on the formula part. Okay. Formula part is fine. I'm asking in some other way. कि ऐसा क्यों हो रहा है? Okay. हाँ भाई, दादर की मित्र मंडली, सर्वे लमे। I'll take, let's say, Devashri. Yes. Sir, maybe like because we are choosing 3 of 5 3 of 5 items, like suppose, so we pick 3 or we take the other 2 and like we just throw them away, and uske baad if we Correct. That's the correct explanation. See, listen carefully. What did he say? ध्यान से सुनना. Everyone, please focus here. है ना? चीज बताओ मेरे को. यदि मेरे पास n ऑब्जेक्ट है, मैंने r सिलेक्ट कर लिए, तो कितने रिजेक्ट कर दिए? लेट मी, मैंने R सिलेक्ट कर दिए तो मैंने कितने रिजेक्ट कर दिए बेटा? n माइनस R। एवरीवन एग्रीज? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। अरे मैंने R सिलेक्ट करे ना, एक 5 मेरे पास सपोज करो स्टूडेंट है, मैंने 2 सिलेक्ट कर लिए तो कितने रिजेक्ट कर दिए? समझ में आया अभी? हाउ मेनी डिड ऑफ नाउ गेट द लॉजिक? क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं ना, आप सिलेक्शन कर रहे हो और रिजेक्शन कर रहे हो, तो यदि आप सिलेक्ट करते हो तो आप साथ में रिजेक्ट भी तो कर देते हो बेटा। ये समझ में आया क्या ऋषा? बोथ ऋषा, ठीक है?
So the number of ways of selecting something is equivalent to number of ways of rejecting something. सपोज करो ना आपने 5 में से 2 सिलेक्ट करे तो आपने 3 तो रिजेक्ट कर दिए ना, तो रिजेक्ट करना भी तो एक टाइप का सिलेक्शन ही है और दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। आपने 2 सिलेक्ट कर दिए तो सपोज करो आपने 3 रिजेक्ट कर दिए, या आपने 3 सिलेक्ट कर लिए तो आपने 2 रिजेक्ट कर दिए। साइमल्टेनियसली हो रहा है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। यस, पूछो। बाइनोमियल से कर सकते हैं एक्सपेंशन से। बाइनोमियल एक्सपेंशंस तो अभी पढ़ा नहीं है मैंने, ठीक है आप उससे करना, वही फार्मूला मेथड ही होगा। ये जो मैंने बताया आपको, द नंबर ऑफ मेथड ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिजेक्शन, ये समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू। यस सर, फील। सर इसका मतलब कि जो n रहता है तो n माइनस r और r की जो एडिशन है वो सेम रहने वाली है। इसका मतलब कि अगर n जो टोटल नंबर है उनमें से अगर हम लोग r सिलेक्ट करें तो रहते हैं n माइनस r, और अगर हम लोग n माइनस r सिलेक्ट करेंगे तो r रहते हैं, और दोनों का जो एडिशन रहेगा वो सेम ही रहेगा। वेरी गुड। तो इससे आपका ये दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। अब शर्विल ने बताया तो ये दोनों फॉर्मूले लिख लो बेटा प्लीज। इफ NCX is equals to NCY, है ना? इसका मतलब क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, NCN माइनस Y। अभी देखो न्यूमरेटर यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n है, यहाँ x है तो ये भी इक्वल होना चाहिए। इट मींस x शुड बी इक्वल्स टू n माइनस y, इट मींस n इज इक्वल्स टू x प्लस y। तो इस इक्वेशन के 2 रूट आएंगे, है ना? एक क्या आएगा, n इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन से 2 आंसर आएंगे, n इज इक्वल टू x प्लस y, और दूसरा x इज इक्वल्स टू y, ये भी आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू y और n इज इक्वल टू x प्लस y, यहाँ रख दोगे तो 2x से 2y व्हाटएवर जो भी आएगा। अंडरस्टूड? चलो अभी किसको क्या डाउट है? यस आरव। सर आपको x इज इक्वल्स टू y कैसे मिला? x इज इक्वल्स टू y, ये वाला देखो जरा, ये n है, यहाँ पे भी n है, और यहाँ x है, यहाँ y है, तो ये दोनों कब इक्वल होंगे? जब इनका डिनोमिनेटर सेम होएगा। हाँ। तो वही तो किया मैंने। अच्छा। अदरवाइज आप इसको क्या लिख सकते हो, n माइनस y करके लिख सकते हो, तो उससे आपको n का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है? तो बोथ आर वैल्यू। ओके सर, थैंक यू। चलो अभी इस प्रॉपर्टी के बेस पे बेटा 1-2 क्वेश्चन ले लें, है ना? एनसीआर की जो प्रॉपर्टी हमने करी है उस पे मैं 1-2 सम आपको देता हूँ, आपको करना है अभी। NC15 is equals to NC8 is equals to NC8, है ना? Then find the value of NC21. Then find the value of NC21. करो। हाँ 3 and 4 तो सीधा सीधा आंसर लगा के कर लोगे।
क्वेश्चन 3 और 4 में भी डाउट है किसी को? यस दीप्तांशु करेक्ट। और किस किस को आया करेक्ट आंसर? यस सर करेक्ट। अक्षय मोहने करेक्ट, रिद्धि करेक्ट। श्रेया मल्टीप्लाई कर ले बेटा। आदित्य रॉन्ग। यस प्रिशा देसाई करेक्ट। करेक्ट अर्नव। हीरा रॉन्ग है बेटा आपका। प्रत्युष त्रिपाठी रॉन्ग है। जे करेक्ट है। श्रेया त्रिपाठी करेक्ट। चलक गाला करेक्ट है। हमें पाई बेटा क्या रॉन्ग है आपका? क्या मिस्टेक करी देखो जरा। जैनी करेक्ट है। प्रणव अरोरा करेक्ट। आयती करेक्ट। रूपेश त्रिपाठी करेक्ट। प्रत्युष त्रिपाठी करेक्ट। स्वप्निल करेक्ट। लवलीना करेक्ट। श्रेष्ठा करेक्ट। आर्यन रॉन्ग है। उदिश रॉन्ग है। आना रॉन्ग है। अमित पाई अभी सही है। आना रे रॉन्ग। हर्षी पांडे रॉन्ग। हरित्री करेक्ट है बेटा। डाउट लेते हैं बेटा सेकंड और थर्ड का, फोर्थ में बचा ले लेंगे। ये वाला क्वेश्चन कर लो। वो तो सीधे फार्मूला बेस्ड है, उसमें क्या है अभी, फिर भी मैं ले लूंगा नो प्रॉब्लम। भाविन मिस्टेक किया कैलकुलेशन? ठीक है चलो वेरी गुड। मैनी ऑफ यू गॉट इट। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट द करेक्ट आंसर, है ना? तो लेट मी सॉल्व इट। दोस्त 20% जिनको नहीं आया वो यहाँ पे फोकस करो। एक चीज बताओ मेरे को, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? द वैल्यू ऑफ n वुड बी दिस प्लस दिस। अभी प्रॉपर्टी हमने सीखा था, सो इट वुड बी 5 प्लस दिस इज 23. So now put the value over here, it will become what? 23c21. So it would be what? 23 factorial, है ना? 23 minus 21, that is factorial 2 into factorial 21. Correct? Now this 23 can be written as, this 23 can be written as what? 23 into 22, 23 into 22 into 21 factorial divided by 2 factorial is 2, 21 factorial is as it is. Not 21 factorial, 21 will factorial corrections allowed. 2 1 are 2, 2 11 are this. 11 23 is 253. So 253 is the answer. Hope इस जो explanation में किसी को doubt है? Anybody having doubt in this explanation? Yes, दिया। तो मुझे समझ में नहीं आया, so why did you add 15 और 8? प्रॉपर्टी नोट करी थी आपने इससे पहले? हाँ सर। क्या प्रॉपर्टी थी? So n minus r, so n c n minus r is equal to n No, c r. no. NCX is equal to NCY. Then what is n? Oh, okay, so वो वाला ठीक है sir, got it. Thank you sir. यश अक्षन। सर तो आपने जब प्रॉपर्टी डिराइव की थी NCX is NCY, तो आपने NCX और NCN माइनस वाई को इक्वल किया, इसलिए राइट? हाँ। तो सर मुझे लगा कि अगर आप बोले कि वो लॉजिक क्या है कि n माइनस आर आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा
कि NC-X है और NC-Y है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि NC-X इज एक्सेप्टेड, NC-Y इज रिजेक्टेड, ये दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं, हाँ तो उसको x प्लस वाई लिया तो ये नहीं आता है, हाँ ठीक, तो वो भी हो सकता है ना, ऐसे भी मैं सोच रहा था। हाँ करेक्ट करेक्ट। अगर हमने दोनों को ऐसा ले लिया कि बोथ हैपनिंग एट साइमल्टेनियस टाइम्स, तो अगर हम रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड को ऐड करेंगे तो वही आता है। करेक्ट करेक्ट बेटा करेक्ट। ओके सर। यस इरा। सर पिछले जब हमने वो फॉर्मूला जब निकाला इससे पहले वाले सेट से, सर वो कैसे निकाला हमने इसका, लाइक वो कौन उसका सा ओरिजिन, फॉर्मूला? सर जिस पे ये बेस सम है, सर एन n इज इक्वल टू x प्लस वाई। आपने फॉर्मूला लोड किया था, क्या फॉर्मूला है बताओ मेरे को जरा। हाँ सर, हाँ फॉर्मूला बोलिए बेटा। nc x इज इक्वल टू nc y प्लस एन nc इज सी इक्वल टू एक्स इज इक्वल्स टू एन सी वाई, which is again equal to nc नीचे n minus y, हाँ देन एन इक्वल्स टू x कितना is जाता equal है, to एक्स प्लस n minus y। एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाता है। हाँ सर। ठीक है, हाँ तो अभी इसमें क्या डाउट है? सर nc x is equal to nc y, ये हमारे पास कैसे आया? ये गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है बेटा। अच्छा, इसमें किसने कोई लाया या बदलाव नहीं किया? हाँ ये इक्वेशन गिवन है तो ये होगा, ये गिवन है तो ये होगा। इफ दिस इज गिवन देन दिस विल हैपन। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। चलो एक वन मोर प्रॉब्लम, मेरे को पुराने सम्स एक्सप्लेन करने हैं क्या? एनीवन? एनीवन बच्चे जो पुराने दो क्वेश्चन छूट गए थे, एनी स्टूडेंट? जो लास्ट के दो सम छूटे थे ना, 4C0 और 6C1 कर लोगे ना? 4C1 का वैल्यू 0 नहीं आएगा, ये क्या आएगा? फैक्टोरियल 4, 4 माइनस 0 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट, फैक्टोरियल 0 is 1, so 1 upon 1 the answer is 1. Similarly 6C1 would be factorial 6 divided by factorial 5 divided by factorial 1, it is 6. एक्सप्लेन कर दिया मैंने अभी। यस आदित्य। सर तो फिर अगर NC1 होगा तो NC1 का आंसर हमेशा n आएगा ना? यस ओके सर। यस रितिजा। सर अगर NC 0 हुआ तो? NC 0 हुआ तो? 1 आएगा। ओके सर, थैंक यू। चलो अभी ध्यान से देखना, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अभी मैं थोड़ा लेवल इंक्रीज करूंगा बेटा, ठीक है? अभी बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर लिए हैं मैंने, अभी मैं 2 वर्ड्स प्रॉब्लम ले लेता हूँ, ठीक है? अभी मैं 2 या 3 वर्ड्स प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ये बिल्कुल इजी वाले ले रहा हूँ मैं, है ना? अभी तो टाइम बचेगा, देन आई विल इंक्रीज द लेवल। ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम है आपके पास, लेट्स से 5 men and 2 women है, या 5 men and 2 women। आपको 3 persons की एक कमेटी बनानी है, 3 persons की एक कमेटी बनानी है। कितने तरीके से बना सकते हो? In how many ways can you make a committee of 3 persons? Yes. Now let me give the enable the chat section। पूरा सॉल्व करके बताना। सीधा चलो सॉल्व करके नहीं बताओगे, नॉर्मल आंसर दोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बोलो क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन इज, यस हमें ज्यादा करेक्ट। हाँ क्वेश्चन इज यू हैव 5 men and 2 women, you have to make a committee of 3 persons, in how many ways can you do it?
Let me see how many of you got it. Hmm, 35 is the correct answer, which many of you got it. Very good. है ना? Very good. Many of you got it. 35 is the correct answer. कितना सिंपल से फॉर्मूला लगाना है आपको, कुछ नहीं उसमें, आपको सिलेक्शन करना है ना. यू डोंट केयर ऑर्डर क्या है. सो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? टोटल 7 पर्सन्स आर देयर, 5 men and 2 women. You have to select how many? 3. तो 7c3. 7c3 का वैल्यू कितना आएगा? फैक्टोरियल 7 divided by factorial 3 into factorial 4. When you simplify, the answer would be 35. You only have to make selection. There is no arrangement. Yes, बोलिए. क्या डाउट है? बोलिए क्या डाउट है? सर कुछ नहीं. तो बेटा हैंड रेज मत कीजिए करे. चलो अभी मैं कंडीशन लगा रहा हूं. नाउ आई एम गोइंग टू, है ना, अप्लाई. हाँ, कंडीशन. कंडीशन है कि टीम में एटलीस्ट 1 विमेन होना चाहिए. कंडीशन इज दैट there should be at least 1 woman in the team. Now give me the answer. At least 1 woman should be there, must be there. Sure. Now let me see how many of you. No, Arav, you. No. नहीं अर्पित. 40 का, अरे आंसर 35 से तो कम ही होगा ना. 40 कैसे पहुंच जाएगा? नो आदित्य, रॉन्ग. No one gave the correct answer till now. अभी तक किसी ने करेक्ट नहीं दिया है. अर्ताना महातो करेक्ट बेटा. वेरी गुड अर्ताना. अक्षय मोहने करेक्ट. दिया दोषी करेक्ट. Three student got it. Hashini correct. Sorry, Akshan. Akshan. Is it correct now? Ayati correct. No, girl, wrong. Ahana, wrong. Prisha Desai correct. Kunal Gupta correct. Shreya Tripathi correct. Prisha correct. Dhruv Sharda correct. Chalo, at least 20 to 30% student got it. Those who didn't got it, now I'm going to mute the chat and explain it. Focus on it. Correct? 20 to 30% student got it. Rest 80-70% who didn't got it, focus on how I'm going to do it. ठीक है, तो अभी देखो एटलीस्ट 1 विमेन बोला है ना, तो क्या बनाना पड़ेगा हमको?
केसेस बनाने पड़ेंगे, है ना। और केसेस के केस में हमेशा हम क्या करते हैं, ऐड। तो मेरा पहला केस देखना, माय फर्स्ट केस 3 पर्सन है, सपोज करो उसमें 2 मेन है और 1 विमेन है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है एटलीस्ट एक विमेन तो आपको लेनी पड़ेगी भाई, तो 1 विमेन ले ली मैंने। सेकंड में बोलता हूँ कि नहीं 1 मैन है और 2 विमेन कर लो। अच्छा मैं फिर 3 विमेन तो कर नहीं सकता क्योंकि सिर्फ 2 ही विमेन है, तो 3 विमेन वाला तो रिजेक्ट हो गया, तो ये सिर्फ 2 ही केस बनेंगे। अब पहला केस देखना, पहला केस है मेरे को 2 मेन चूज करने हैं आउट ऑफ 5। कितने तरीके से कर सकता हूँ, 5c2 इनटू क्यों किया, क्योंकि ये स्टेजेस वाला केस है। आप सिर्फ मैन चूज करोगे, विमेन चूज नहीं करोगे तो आपके 3% सेलेक्ट नहीं होंगे, टास्क कंप्लीट नहीं होगा, है ना। सो 1 विमेन को चूज करने का तरीका 2 में से 2c1। इसका जो चॉइस करो अभी, 1 मैन को चूज करना है आपको 5 में से, सो दैट इज 5c1 इनटू 2 वुमेन को चूज करना है 2 में से, सो 2c2। अब ये केसेस है तो आप इनको ऐड करोगे, तो 5c2 की वैल्यू अब भी आपने निकाली थी, कितनी आई थी 10। 2c1 2 होता है तो दिस इज 5 into 2। 5c1 5 होता है, 2c2 1 होता है, तो 5 into 1 is 5, 2 into 10 is 20, 20 plus 5 is 25, so 25 is the total number of ways committees can be formed according to the given condition. ठीक है, now yes Anwar, tell me. Sir, the ending part you went a little bit too fast, so can you repeat that part? Okay, I'll just explain again. You tell me which part you did understood. Did you understood I have made these 2 cases? Yes, sir. Now I'm going to calculate the number for this case, 2 men and 1 woman. Yes. Correct? So tell me in how many ways I can choose 2 men, select 2 men out of 5 men. So that's 5c2. 5c2. Now I will multiply. Why? Because I'm saying what? I'm choosing 2 persons. First for this place, second for this place. If I didn't select this, the task will not be completed. So I have to multiply. Now I'm going to choose 1 woman out of 2 women. And how many ways I can do it? 2c1. 2c1. Similarly, for this case, 1 man out of 5, 5c1. 2 women out of 2, 2c2. Now simply calculate the value of these. We have just learned how to calculate the values of these in the previous section. Yes. Now calculate the values of these. It would be 10, it would be 2, 2 into 10 would be 20. Similarly, this would be 5, this would be 1, 5 into 1 would be 5, 20 plus 5 is 25. Okay, sir, thank you. Understood. Fine? Yes, sir. Yes, Garv. Garv. हाँ सर, इंस्टेड ऑफ ऐसा, अभी मेरा आंसर गलत आया, बट हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि ऐसे 3 प्लेसेस फिल किए, एक में वुमेन डाल दिया और अभी बचे हैं 6 पीपल, तो 6c2 लगा के क्यों नहीं आ सकता फिर हमें आंसर? वेरी गुड, आऊंगा जस्ट अभी ना, मैं अलग से लेके अभी एक्सप्लेन करूंगा, है ना। उसमें एक बहुत प्रॉपर मिस्टेक होती है, सब बच्चे करते हैं, ठीक है। आई एम हैप्पी कि तूने वो मिस्टेक की, है ना। अभी आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, कीप दैट इन माइंड एंड मैं से पूछना, वो नेक्स्ट क्लास में तेरे को 100% बताऊंगा, है ना। एनसीआर की कंडीशन होती है ना, हर केस में नहीं लगा सकते, एक कंडीशन होती है, वो मैं तेरे को बताऊंगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, ध्यान से मैं से नेक्स्ट क्लास में पूछना, बताऊंगा पक्का। एनीवन एल्स? ये सरवील, यस। सरवील बोलो। सरवील, डाउट? ओके, प्रथम।
हाँ सर, मतलब मेरे को डाउट नहीं है, मेरे को पास एक मतलब ज्यादा अच्छी मेथड है, मतलब हाँ अदर मेथड है, अच्छी नहीं वो पता नहीं, पर हाँ मतलब हम लोग क्या कर कॉम्प्लीमेंट्री, सकते हैं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री टोटल कॉम्प्लीमेंट्री माइनस, मेथड। ठीक है, हाँ फाइन, एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल, फाइन। हाँ। यस, एनीवन एल्स? सौमिल। सर तो मुझे डाउट था कि हम लोग ने 2 मेन और 1 मेन को मल्टीप्लाई क्यों किया, मतलब 5C2 और 2C1 को मल्टीप्लाई जिसको मल्टीप्लाई समझ में नहीं आ रहा बेटा, उसको पीएनसी समझ में नहीं आया अभी तक। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई। लेक्चर 1 लेक्चर 2 मैंने उसी में डेडिकेटेड किए हुए हैं, टोटल मैंने 50 + 49। जिस बच्चे ने ऑनेस्टली वो एक्सरसाइज सॉल्व करी, कब अप्लाई करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन, बताया था मैंने स्टेजेस के केस में। सॉरी वॉच द रिकॉर्डिंग्स ना बेटा, टेक इट सीरियसली इफ यू आर इंटरेस्टेड, वॉच द रिकॉर्डिंग्स, इट्स ऑल कवर्ड। यश आदित्य। सर आपका मेथड करने के जगह अगर हम 5 मेन और 3 प्लेसेस ले और वो फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर दे और टोटल नंबर में से सबट्रैक्ट करे तो फिर भी 25 आएगा सर। हाँ, that's what that girl was saying, the another student was saying acceptable, complementary method है, fine. यस स्वप्निल। सर हम लोग इधर केसेस क्यों ले रहे हैं पहले, मतलब 2 मेन 1 वुमेन और 1 मेन 2 वुमेन का? हाँ, और किस तरीके से करना चाहते हो? नहीं पूछ रहा हूँ कि इधर हम लोग केसेस क्यों ले रहे हैं, स्टेजेस क्यों नहीं ले रहे हैं? केसेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम केस लोग बनाए ना मैंने आपको, 3 कमिटी 3%। हाँ, केसेस, स्टेजेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेजेस? अगर हम लोग एक कंडीशन को एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब सेटिस्फाई नहीं होती। हाँ तो ठीक है, तो अभी मेरे को 3% की कमेटी बनाना है, ठीक है, कितने तरीके से बन सकती है, क्या क्या हो सकता है उसमें बताओ सर। क्या? I have to make a committee of 3%. How did I comprise it? कितने कितने तरीके से बन सकती है वो? पहला केस ले लो कि उसमें 2 women है, 1 man है, 1 woman है, 1 man है, 2 women है। हाँ सर, पर अगर हम लोग एक केस को हम लोग एक सब टास्क को अगर हम लोग एक्सक्लूड कर देते पर टास्क तो कंप्लीट नहीं होगा ना। किस केस में? लाइक हमने 2 केस लिया, 2 मेन 1 वुमेन और 1 मेन 2 वुमेन, तो अगर हम लोग ने एक केस को हम लोग ने एक्सक्लूड कर दिया तो इसमें आप FOM और FOA नहीं लगेगा ना बेटा, इसमें FOM और FOA नहीं लगेगा, इसमें आपको NCR लगाना पड़ेगा। FOM और FOA की हेल्प से हमने NPR और NCR ड्राइव करे हैं, तो अभी इस केस में NCR लग रहा है। आप FOM लगाने का ट्राई मार रहे हो, नहीं लगेगा, कैसे लगेगा बताओ? ओके सर, और एक डाउट है कि हमने 5C2 की जगह 5P2 क्यों नहीं किया? सिलेक्ट कर रहे हैं ना, परम्यूट कहाँ कर रहे हैं? आर वी सिलेक्टिंग और भी परम्यूटिंग? मतलब इधर हम लोग अरेंज नहीं कर रहे हैं। अरेंज नहीं इधर हम कर लोग अरेंज नहीं कर रहे हैं। यस, वी आर नॉट अरेंजिंग, वी आर ओनली सिलेक्टिंग। हमको इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता कि कौन फर्स्ट सिलेक्ट हुआ है, कौन सेकंड हुआ है। यस सॉरी श्रेंजर। यस सर इसको सॉल्व करने के लिए 7C3 - 5C3 यूज कर सकते हैं? यस यस यस। यस सर। सर इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट लेंगे जिसमें सारे केसेस हो सकते हैं और एक में सेम मेथड बेटा बहुत सारे बच्चे बोल चुके हैं, कंप्लीटली एग्री कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, डोंट वरी।
है ना। अभी टाइम लिमिट है इसलिए मैं नहीं करा, मैं फिर से लूंगा एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। ठीक है, तो I'll take one more question, then I'll take again this question in the second class. I'll solve it with 3 method, है ना, and then Garv has to tell me कि उनमें से कौन सा मेथड सही है और कौन सा मेथड रॉन्ग है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से ये 3 लूंगा। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन और कर दो मेरे लिए। 5 कमिटी पर्सन की कमिटी बनानी है ना, 6 मैन है और 4 विमेन है। आपको 5 पर्सन की कमिटी बनानी है। कंडीशन है एटलीस्ट 2 विमेन होनी चाहिए। कंडीशन है बेटा, बिना कंडीशन के नहीं है। एटलीस्ट 2 women should be there। 5 पर्सन की कमिटी बनानी है, 6 मैन है, 4 women है। कितने तरीके से कर सकते हैं, है ना। एनेबल द चैट सेक्शन, फटाफट आंसर दे दो। डाउट्स बेटा मैं भी नेक्स्ट क्लास में लूंगा, अभी आज के डाउट्स एनफ है। बस ये क्वेश्चन कर दो लास्ट, मैन दैट वुड बी द यस करेक्ट रिद्धि। हाँ निधि करेक्ट, निधि लवाना करेक्ट। नो, प्रत्युष रुपेश रॉन्ग, आर्यन रॉन्ग, नमन रॉन्ग। नो रमन, नो शिवेश रॉन्ग, अर्पित करेक्ट। हाँ तो चारों के आंसर निकाल के आंसर ऐड कर दो भाविन। रशल करेक्ट, श्रेया करेक्ट, गर्व करेक्ट, अश्विनी रॉन्ग, कुणाल गुप्ता रॉन्ग। श्रेष्ठा बेटा क्वेश्चन ये है, आपके पास 6 मेल हैं एंड 4 women है ना। आपको 5 पर्सन की कमेटी बनानी है। कंडीशन है, ऐसे नहीं कि कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 2 women तो होनी ही चाहिए, है ना। दिस इज द कंडीशन, नॉट ऑल। Yes, Prisha, correct. Prisha from the other, correct. Prisha from Andheri, correct. Ayati, correct. Arovita, wrong hai. Ahana, wrong. Anmol, correct. Dhruv Sharda, wrong. Pai, correct. Many of you got it. Very good. No? Almost 50% of the student got it. No, Lavina, wrong है बेटा, 126 नहीं है। Akshan wrong है। ठीक है, तो आई लीव विद दिस आंसर, है ना। आंसर इज 186, है ना। आंसर इज 186। तो अभी ट्राई मारना, जिनको आएगा वेल एंड गुड, है ना। जिनको नहीं आएगा आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई विल अगेन टेक दैट फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, सॉल्व इट विद 3 मेथड एंड यू हैव टू टेल मी व्हिच मेथड इज करेक्ट, व्हिच मेथड इज रॉन्ग। ठीक है, सो ओके, थैंक्स गाइस फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। कीप लर्निंग,
Thank you very much. I'm gonna end the meeting now, beta.